स्टूडेंट्स, जोशफुल स्टूडेंट्स, पूरा इरादा है ना, फोड़ देंगे 2024 में. So how much is the level of dedication, commitment that you have? Type in the chat box, in the comment box, let me know. पूरा पक्का इरादा है कि नहीं है? आधा अधूरा नहीं, पर पूरा पक्का इरादा चाहिए. So today we are going to talk about the 5 reasons why only 300 students clear NSEP. हर साल 300 बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं when so many thousands of them aspire for this? So there are 5 reasons that we are going to talk about. So first of all, my introduction is, my name is Bhavdeep Sethi and you have attended many of my sessions earlier. So this is Bhavdeep Sethi and I did my M.Tech from IIT Bombay. My passion is to convert physics haters into physics lovers. Students come to my class, sir, physics समझ नहीं आती, डर लगता है, and so many things. And I said, take 5 class challenge. Once you come to my classes for 5 days, physics lover ban jaoge. And I have done that many times. And but today talk is not about me, it's about NSEP. So let's move on. So the agenda today is, first of all, we are going to talk about NSEP in a nutshell, very briefly, because you all know about this exam, but just as a refresher. And then we'll talk about why should you prepare for NSEP, and that's another thing we'll talk about. And then we'll say the main reasons, 5 main reasons why only 300 students make it every year. So what are those reasons? And once you know those reasons, you know what you should be doing to be in those 300 students. That is the whole purpose today. तो क्या मेरे से हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा. I'll tell you why. And for you, it is possible to be in those 300 students. और 300 क्यों? 5 students जो international level पर जाएंगे. And then we'll also talk about where to start. So first of all, NSEP in a nutshell, National Standard Examination in Physics. This is conducted around November end every year. So in November 2024 में conduct होगा ये. This is the first step to your International Physics Olympiad. If you clear this exam, if you are in those 300 students, there will be further rounds of selections and filtering. And ultimately 5 students will represent Team India in the International Physics Olympiad. Then this is given by 9th to 12th graders. Syllabus wise देखें तो 11th 12th का पूरा syllabus, in short JEE का पूरा syllabus, whatever is covered in JEE, that will be over here. Now obviously at the international level there are more topics and chapters, but those will be covered once you clear NSEP and you are trained. You will be given training for those. So in those camps you will be given the training for those extra topics. For now JEE syllabus is what we aspire to. Right? So why should you prepare? Number one, and I always say that this should be the only reason that should motivate you. By chance to represent Team India. टीम इंडिया, अरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाओगे तुम यार, मजाक है. इंटरनेशनल स्टेज पर think about the pride that your parents, your relatives, your entire city would have कि हमारा बच्चा या बच्ची इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे इंडिया को. That should be the motivation factor. That's later, but even if you look at the first stage, which is NSEP, and you are in top 1% from your state, you will get a merit certificate. और ये कागज का टुकड़ा नहीं है. This carries a lot of weightage. इसको आप कहीं जॉब इंटरव्यू में दिखाओगे, कभी किसी यूनिवर्सिटी को दिखाओगे. This is a big medal in itself. Now, confidence, obviously, when you're preparing for Olympiads, you don't memorize things, you study conceptually. So the kind of confidence that you will have for physics is going to be another level. And that is definitely going to help you with JEE NEET. So if you're targeting these exams, think about NSEP is going to help you with that. Okay. So now we come to the 5 main reasons. I mean, there are many reasons, but the 5 main reasons why only 300 students clear NSEP. So let's look at them one by one. So reason number 1 is basically potential candidates for 5-member Team India. मतलब ये कि ये जो बच्चे हम यहाँ NSEP से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, उसके बाद और एग्जाम होगा, जैसे और कम बच्चे सिलेक्ट होंगे, फिर और कम सिलेक्ट होंगे, करते करते टोटल 5 स्टूडेंट्स हैव टू बी सिलेक्टेड. तो 300 इसलिए रखा है कि इट्स मैनेजेबल नंबर, बिकॉज द फर्दर एग्जाम्स विल 300 से और कम, फिर और कम, फिर और कम. सो अल्टीमेट गोल for this exam is to select 5 students only, and that is why they are selecting top 300, and then further rounds will reveal कि वो 5 कौन से हैं. इंटरनेशनल लेवल पर 5 ने ही जाना है. So now, so that is the reason only 300 are selected. कि इन 300 जो हाई टैलेंट वाले बच्चे हैं,
इनको फर्दर राउंड्स में देखे कि इनमें से 5 कौन से हैं। हो सकता है इनमें से किसी को ट्रेनिंग देकर दे सके, तो और वो उस पर फोकस कर सकते हैं। इन 300 बच्चों पर वो फोकस कर इनमें से 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज द नंबर वन रीजन that there is a small number of students that are selected, because IAPT, who conducts all these Olympiads, they actually want to select less number of students, क्योंकि ultimately तो और भी less चाहिए। Now, before I go to reason number two, which is very important, I would like to explain some numbers here. If you did not know about this, I'll tell you MI and MAS. So, होता क्या, देखिए मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। ये 2003 के नंबर्स हैं। तो पेपर होता है 216 मार्क्स का, टोटल 216 मार्क्स का। अब किसी के ज्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं। तो क्या किया जाता है, टॉप के जो टॉपर्स है 10 स्टूडेंट्स, टॉप 10 स्टूडेंट्स का एवरेज लेते हैं। तो एग्जांपल हियर 2023 के पेपर की बात कर रहे हैं, तो 216 नंबर का पेपर था। उसमें से जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे, दे स्कोर्ड 199.8 एवरेज, है ना। किसी का ज्यादा, किसी का कम। सो बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स यार, ऐड दोस 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स डिवाइड बाय 10, तो ये नंबर आ जाता है। अब इससे आगे चलते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि बेसिकली इस नंबर को लिया, इसका 80% लिया, इसका 80% आता है 159। इस नंबर का, टॉप 10 स्टूडेंट्स के एवरेज का 80% इज 159। अब ये 159 को जो नंबर मिला, 159 नंबर है, उसको हमने बोला मेरिट इंडेक्स। मैं समझाऊंगा इनका मतलब क्या, पहले आप समझ लीजिए कैलकुलेशंस। देन इसको 80% किया तो ये मिला, और इसी को 50% किया तो इतना नंबर मिला, है ना। राउंड डाउन किया उन्होंने, क्योंकि 99 पॉइंट समथिंग आया था सिमिलरली। बट इसका 80%, ये 50%, या 50% वाले को बोला मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। अब इसका मतलब ये होता है, जैसे नाम बोल रहा है, कि अगर उन 300 बच्चों में से सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट होना है, तो ये तो मिनिमम है। अगर किसी बच्चे का 50% इससे कम है, अगर किसी का 99 मार्क्स से कम आया था, उसको तो कोई चांस ही नहीं है मिलने का, है ना। लेकिन अगर किसी का 159 से ऊपर आया था, उसको चांस है। तो लेट्स मेक दिस सिंपल, हमें 300 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो क्या करेंगे, 159 और उससे ऊपर के जितने बच्चे सबको ले लिया। अब देखा कि हो गए 300, ठीक है। नहीं हुए, फिर वो इसके बीच के जो बच्चे, इसके नीचे वाले तो सिलेक्ट नहीं हो सकते थे। नाउ दे विल गो इनटू दीज बच्चे जो इस फिट कैटेगरी में फिट होते हैं। सपोज यहां से 250 फिट होते थे, मान के चलते, तो बाकी 50 यहां से आ गए। यहाँ 100 फिट होते थे, 200 यहां से आ गए। अब कौन आए इनमें से, दैट अगेन इज बेस्ड ऑन स्टेट कोटा, दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। ठीक है। सो दीज आर द नंबर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल. So obviously, the number two reason is paper is challenging, and the numbers I explained you will reveal that. तो पेपर इज चैलेंजिंग। पेपर चैलेंजिंग क्यों है, इसका सीधा सा रीजन यही है कि टू सिलेक्ट ओनली 300 स्टूडेंट्स, IAPT हैज टू मेक द क्वेश्चन पेपर वेरी चैलेंजिंग। अगर इजी हो जाएगा तो फिर सभी उस क्राइटेरिया में आ जाएंगे, देन देयर विल बी अ वेरी बिग टाई। सपोज 216 मार्क्स का पेपर है, और पता लगा कि ऊपर ही ऊपर सारे हजारों बच्चे आ गए, तो हाउ डू यू इवन सिलेक्ट 300? सो पेपर हैज टू बी रियली चैलेंजिंग to ensure that we are able to select 300 students. So this is a big reason why, and obviously that is obviously going hand in hand with the first one. Now that you can see the numbers and you'll see how challenging the paper is. So remember we said top 10 का average 199.8 था। जो MI है, जिसके ऊपर पक्का सिलेक्ट हो जाना, वो 159 था। और ये IAPT की साइट से ही लिया मैंने, बिल्कुल देखिए, मैंने URL भी सेव कर लिया, आपका पूरा क्लिप किया कि ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आ रहा है। और MAS 99 था, जो मिनिमम एडमिशन क्राइटेरिया वाला था। अब देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव MI, वो स्टूडेंट्स जिनको हम उन 300 के पूल में सीधा डाल देंगे, वो सिर्फ 72 है। अब ध्यान से देखिए इस बात को, बहुत बड़ा एक नंबर रिवील हो रहा है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि सिर्फ और सिर्फ 72 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस क्राइटेरिया को फिट किया, ओनली 72। ठीक है। अब बचे कितने, 300 में से 72 माइनस कर दिया हमने, तो कितना आ गया, 228। अब 228 सिलेक्ट करने, वो कहां से आएंगे, उन बच्चों से जिनके 99 से 159 के बीच में थे। तो हमने कहा हो सकता है बहुत सारे होंगे, लेकिन आप देखिए उसमें भी कितने कम बच्चे हैं, 912 बच्चे हैं सिर्फ। मतलब आप ये सोचिए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 99 से कम थे। And look at how difficult this paper is going to be. Difficult word is not what I like. I would like to call it challenging. So second reason is paper is really challenging. है ना? But how does it matter, yaar? This is not even an issue for students studying conceptually and with a plan. अगर आपने determination कर लिया है और plan बना लिया है, फिर आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे मेरे को तो एक ही सीट चाहिए ना 300 में से,
आप तो ये बोलोगे यार कि ठीक है कम हो गए 300 क्या, आप बोलोगे मैं तो कहता हूँ 100 भी कर दिए तो भी मैं उसमें आऊंगा, आई वांट टू बी द टॉपर। सो आपके लिए ये चैलेंज नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रीजन ऑब्वियसली। अब थर्ड रीजन इज स्टेट कोटा। सो स्टेट कोटा गोज हैंड इन हैंड विद व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो हमने बोला कि यहाँ पे तो 72 फिट हुए थे जिनको सीधा ले लिया है ना उन 300 के पूल में। अब बाकी बचे ये इसमें से हमको चूज करने 228 स्टूडेंट्स। वो कहां से आएंगे? वो स्टूडेंट्स आएंगे यहां से। कहां गया? यहां से 912 में से। अब उनमें से किसको सिलेक्ट करेंगे? उसके लिए आता है स्टेट कोटा, है ना, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड डिफरेंट क्राइटेरियाज दैट हैव बीन डिसाइडेड कि स्टेट का कोटा होता है। कुछ स्टेट में से ज्यादा स्टूडेंट्स पिक होते हैं, कुछ में से कम होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दिखा दूं कितना वेरिएशन होता है। आप देखिए इस टेबल में यूपी में, क्योंकि पॉपुलेशन इज ह्यूज, 51 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम यूपी। कंपेयर दैट टू केरला एंड दिल्ली, है ना, दिल्ली ओनली 6, केरला ओनली 8। आई मीन now if you are a student living in, let's say, Kerala or Delhi, then very few students will be selected from there, and that is why the criteria is very tight actually. That is making it, that state quota might make it challenging for some students living in some states. Now don't think this is a bias, there is no bias over here. अगेन दिस इज ऑल बेस्ड ऑन कितनी पॉपुलेशन, बिकॉज थिंक अबाउट इट कि जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी किसी स्टेट की उतना ज्यादा ही वहां पर स्टूडेंट्स होंगे और उतने ही ज्यादा लोगों से compete करना है उन बच्चों को। तो दैट्स देयर इज नो अनफेयर प्रैक्टिस बीइंग हेल्ड हियर, बट ऑल आई एम सेइंग इज बिकॉज ऑफ ऑल दैट इट माइट बी चैलेंजिंग फॉर सम स्टूडेंट्स टू फिट द क्राइटेरिया। But again, it's not an issue. It's non-issue for students aspiring to be on the top. आप तो बोल रहे हो ना मैंने तो इसके ऊपर वैसे ही आ जाना है, आप ऐसे करो, आपका एम ही है तो आप स्टेट कोटा तो लगना ही नहीं है, उसके तो मतलब ही नहीं है फिर आप भैया अब ये क्यों, आप तो ये एम करो ना मैं टॉप 10 में आऊंगा, टॉप 10 में नहीं तो टॉप 72 में तो आऊंगा मैं, है ना। यू थिंक दैट पर्सपेक्टिव, सो इट्स नॉट एन इशू इफ यू रियली a student who's aspiring for the top. Now, reason number 4 is syllabus and timing mismatch. तो इसको थोड़ा समझते हैं एग्जांपल से, नंबर से। देखिए इस एग्जाम में 11th और 12th का पूरा सिलेबस आ रहा है जेई लेवल का। 11th का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एवरीथिंग, है ना। एंड देन अगेन यू गो टू 12th, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। अब डोंट यू थिंक 12th का जो स्टूडेंट है he or she is the best candidate for this, क्योंकि उसने 11th का सिलेबस करा था, 12th का भी कर लिया है। तो डोंट यू थिंक दिस इज द, है ना, रीजन। लेकिन अब सोचिए 12th में जो स्टूडेंट है उस 12th के स्टूडेंट को कवरेज तो हो गया सिलेबस का, लेकिन ये एग्जाम हो रहा है नवंबर में, और नवंबर के 2 महीने बाद उसका जेई एग्जाम आने वाला है। आप देखिए टाइमिंग देखिए ना आप। तो सिलेबस कवरेज 12th के बच्चे का हो रहा है पूरा, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम नवंबर में हो रहा है, तो वो नवंबर में अब सोचेगा मैं ओलंपियाड की तैयारी करूंगी, जेई 2 महीने बाद आ रहा है। तो ऑब्वियसली एक वॉर हुआ उसके दिमाग में, जेई और एनएसईपी, एंड जेई विंस फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्या ऑब्वियस रीजंस? देखिए ये एक मेडल ला रहा है विच इज अ बिग 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 अचीवमेंट, मैं इसकी कोई मतलब इसकी बराबरी तो कुछ है ही नहीं। बट इसमें अगर आप हम सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद और लेवल्स के बाद सिलेक्शन होंगे, वो उसके बाद 5 में आना है, वो एक लंबी रेस है बेसिकली, है ना। तो होता क्या है कि यार ठीक है, लेकिन अब जेई एग्जाम अगर मैंने खराब कर दिया जनवरी में तो मेरा तो कैरियर ही बर्बाद हो गया ना, है ना। सो ऑब्वियसली दोस काइंड ऑफ थॉट्स कम इन एंड जेई विंस, एंड दैट इज द रीजन कि 12th ग्रेडर बीइंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस एग्जाम वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में उस समय जेई आ चुका होता है। एंड सेम फॉर नीट, आई एम नॉट राइटिंग नीट हियर, बट यूजुअली, है ना, फिजिक्स ओलंपियाड, है ना, जेई स्टूडेंट्स ज्यादा लेते हैं और बायो पे चले जाते हैं नीट वाले, बट दैट्स नॉट ए रूल, मैनी नीट स्टूडेंट्स ऑल्सो। बट नीट का चैलेंज यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि नीट जनवरी में नहीं होगा, दैट इज अनदर रीजन यहाँ पे जेई मैंने लिखा है। तो नीट वाले बच्चे जो फिजिक्स ओलंपियाड दे रहे हैं उनको इतना चैलेंज यहाँ पर फिर भी नहीं आता। तो नाउ 12th का हमने कहा ये तो, है ना, चले गए, अभी ये जेई की तरफ चले गए, बाकी कौन बचा? 9 to 11th। नाउ 9 to 11th ग्रेडर्स को दे रियली हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, कि भाई 10th वालों का बोर्ड एग्जाम है ना, 11th वालों को अगले साल नीट देना है, जेई देना है, तो दे हैव डायलेमा कि भाई क्या करूं। तो उनको जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है बच्चा 11th में, साथ में उसको 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा मे बी, है ना, तो दे हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। और ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो इतने ज्यादा कमिटेड होते हैं कि 9th में, 10th में, 11th में कि मैं 12th के भी पोर्शंस कर लूं। होते हैं तभी तो सिलेक्शंस हो रहे हैं, बट द रीजन कि इतने कम क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने कमिटेड होते हैं।
और कमिटेड होते हैं तो उनमें से कुछ ही बच्चे हैं जो इतने फॉर्चुनेट होते हैं जो जिनको राइट गाइडेंस मिल जाए। भाई आप जिस भी यात्रा में जाओगे गुरु के बिना काम नहीं चलना, तो कमिटमेंट के साथ गुरु भी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स, दिस इज द रीजन दैट है ना, इट्स अ लिटिल, तो बट अगेन दिस इज नॉट इवन एन इशू फॉर यू, क्योंकि यार फॉर स्टूडेंट स्टार्टिंग अर्ली एंड स्टिकिंग टू द प्लान, अगर आपने जल्दी स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट इन 9th और स्टार्ट इन 10th एंड यू स्टिक टू योर प्लान, तो व्हाई नॉट? दीज आर द इश्यूज, बिकॉज टाइमिंग मिसमैच हो रही थी ना कि भी मैं क्या करूं। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में हो, 9 to 11th पे हो और कमिटेड हो, फॉर्चुनेट हो, व्हाई नॉट? और अगर आप 12th में हो और आपने 9-10 से शुरू कर दिया विद ए प्रॉपर प्लान, अरे वाह जी वाह, सब कुछ हो गया फिर तो, है ना, बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स आई विल से। जब ये वॉर दिमाग में चल रहा है आप कहोगे ठीक है, मेरे तो कॉन्सेप्ट्स ही इतने अच्छे हैं यार, मेरे को तो कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने हैं, अब मुझे जेई पैटर्न के क्वेश्चंस करने हैं, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करने हैं पैटर्न के, दैट्स ऑल। तो आपके लिए इशू नहीं होगा अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से कर रहे हो, जल्दी स्टार्ट कर रहे हो। रीजन नंबर 5 में मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगाऊंगा क्योंकि दिस इज द मेन रीजन, शॉर्ट टर्म विजन। इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, व्हाट डज दैट इवन मीन। तो जेई मेंस रिलाइज ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो आपको पता है भाई, स्पीड एंड एक्यूरेसी, वहां पे फटाफट फटाफट करने हैं और एक्यूरेट करने हैं, दैट इज द मेन थिंग। No, this can be achieved by memorizing and learning shortcuts. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना है, मैं कह रहा हूं कि जेई एडवांस का पेपर तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ ही होगा। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आप एडवांस निकाल पाओगे और फिर फिजिक्स ओलंपियाड निकाल पाओगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेमोराइजिंग शॉर्टकट से जेई मेंस निकाल लेते हैं और निकल जाता है। क्योंकि if you look at the past question paper behavior, if there is a student who can memorize every equation and learns a few shortcuts, के इस केस में ये वो निकल जाता है। और वो क्या है कि that is an easy approach for many many students. I'm really sorry to say that, but education industry में काफी teachers as well as students, they go for this shortcut, memorizing and shortcuts. That's a very short term vision obviously ना। And this is exactly what majority goes for, with a short term vision. Short term vision क्यों? क्योंकि जेई मेंस तो निकल जाएगा यार, आगे क्या, आगे क्या, आप क्या रिसर्च कर पाओगे, क्या आपके पास कुछ इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि आप फिजिक्स में कुछ कर दिखाओ? दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म विजन, बट दैट इज मेनी स्टूडेंट्स गो फॉर दैट। On the other hand, JEE Advanced is a very conceptual exam. Very conceptual exam. Deeper understanding of concepts चाहिए, better problem solving skills चाहिए। बल्कि स्टूडेंट्स तो पजल्स करते हैं, है ना, you do maths puzzles to sharpen your brain. तो दिस इज बेसिकली, यहां पर रट्टाफिकेशन रह जाएगा। अब ये है कि शॉर्टकट्स जो आपने सीखे थे वो आपको कैलकुलेशंस में यहां काम आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कैलकुलेशन मतलब शॉर्टकट्स नहीं करने, शॉर्टकट्स आपके काम आएंगे एडवांस में भी, कैलकुलेशंस में जल्दी कैलकुलेट करने के। लेकिन लेकिन ओवरऑल आप देखो तो शॉर्ट टर्म विजन से काफी स्टूडेंट्स यहां पर जा रहे हैं, राइट। और जेई एडवांस इसलिए मुश्किल होता है, अगर आप अच्छा पिछले साल के नंबर्स देखो तो काफी स्टूडेंट्स जो जेई मेंस में अच्छा कर देते हैं, उनमें से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडवांस में नहीं निकल पाते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, तो वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने शॉर्टकट्स अपनाए थे और जेई एडवांस में वो नहीं जा पाते, और किसी तरह चले भी गए तो आईआईटी में जाकर वो पढ़ाई में कोप अप नहीं कर पाते। देयर आर मेनी ड्रॉप आउट्स नाउ बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑफ शॉर्ट टर्म विजन। तो जे एडवांस नहीं निकलेगा शॉर्ट टर्म विजन से, जे मेंस निकल जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो एनएसईपी इज द बाप ऑफ जे एडवांस, इजंट इट? इट्स मच हायर लेवल, इट नीड्स मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। So no wonder Ratta will fail here as well. So students who are passionate about physics, है ना, whose concepts are clear, जो लॉन्ग टर्म विजन वाले स्टूडेंट्स होते हैं वही इसको निकाल पाते हैं, जिनके पास एकदम पैशन है फिजिक्स ही पढ़ना है मैंने ढंग से। सो दीज आर द स्टूडेंट्स हु विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट इन द क्लास। ये बहुत बढ़िया बात मैंने यहाँ लिखी है, ये मेरी क्लास में काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो व्हाट से सेटिस्फाई नहीं होते। मैं कहता हूं ऐसा होता है, वो पूछेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, व्हाट इफ, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। मतलब उनको इतनी क्यूरियोसिटी होती है, वो व्हाट से सेटिस्फाई नहीं होते, वो फैक्ट को तब तक नहीं मानते, वो कहते हैं हम कैसे मान लें, है ना। दोज आर द स्टूडेंट्स विच आर लॉन्ग टर्म विजन वाले स्टूडेंट्स। बट ऐसे लॉन्ग टर्म विजन वाले स्टूडेंट्स तो बहुत माइनॉरिटी है ना। अब आप मानोगे कि नहीं, आप प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो पैशनेट होते हैं, है ना। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट से एग्जाम के लिए तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम में अच्छा कर लेते हैं। तो
तो सिलेक्शन तो रेशियो कम होना ही है, बट हाउ डज इट इवन मैटर? इट इज अ नॉन इश्यू फॉर स्टूडेंट्स हु आर पैशनेट अबाउट फिजिक्स। अगर आप में पैशन है फिजिक्स का, तो आपके लिए इनमें से कोई रीजन नहीं है जो जो बोले कि आप 300 में नहीं आ सकते। मैं तो कहता इनमें से कोई रीजन नहीं कि आप 5 में नहीं आ सकते। तो तुम कमिटेड हो ना? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कितना प्यार है फिजिक्स से। अगर आपको फिजिक्स से प्यार है, एनएसईपी आपको करना है, आपको फोड़ना है, सिर्फ एग्जाम नहीं देना है, उसको फोड़ना है आपने। तो कितना कमिटमेंट है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, लेट मी नो। ओके, तो क्या मेरे से हो पाएगा, है ना? इतने सारे अभी हमने रीजन देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि नॉन इश्यू होते हैं कितने, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे क्यों नहीं हो पाएगा यार? अगर आप कमिटेड हो, डेडिकेटेड हो, है ना, व्हाट इफ क्वेश्चंस करते हो, हाउ क्वेश्चंस करते हो क्लास में, रट्टे नहीं मारते हो, आपसे हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं ध्रुव। ध्रुव शाह इज आवर स्टूडेंट, वेदांतु का स्टूडेंट। 2023 में इसने फोड़ा, क्या फोड़ा? गोल्ड मेडल लेकर आया इंटरनेशनल लेवल पर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनएसईपी here, we are talking about international physics Olympiad. This is not a small achievement. Students, this is bigger than the Olympics के मेडल्स हमको जो मिलते हैं। जो स्पोर्ट्स का ओलंपिक्स होता है उसके मेडल से बड़ी चीज मानता हूं मैं इसको। And when he got that medal, we all celebrated in the class with the national anthem. बहुत बड़ा अचीवमेंट है, प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। इसी तरह से केमिस्ट्री ओलंपियाड में आदित्य और अवनीश जो हमारे वेदांतु के स्टूडेंट्स हैं, 2023 में सिल्वर मेडल लेकर आए। मैं 2023 की इसलिए बात कर रहा हूं कि पुराना अगर सारा दिखाने बैठ जाऊंगा यहां पर, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। Okay, तो कहां से शुरू करें? जर्नी कहां से शुरू करें? कमिटेड हो गए, तुमने दिखा दिया बच्चों, आप लोगों ने सबने दिखा दिया, तो कहां से शुरू करें? तो मैं हमेशा बात करता हूं, कोई भी जर्नी स्टार्ट होती है सक्सेस इक्वेशन से, और ये इक्वेशन मैं अपनी हर क्लास में यूज करता हूं। किसी भी सक्सेस के लिए आपको एक गुरु चाहिए होता है। गुरु विल टेल यू, गाइड यू, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, एक फ्रेमवर्क बनाएगा। नहीं तो क्या होता है, स्टूडेंट 10 किताबें उठा लाते हैं। We have to know how much to study and how to study efficiently. Guru is required with any journey, not just academic journey, anyway. तो गुरु चाहिए, उसके बाद आपका कमिटमेंट चाहिए। ये नहीं कि मैंने कर लेता हूं, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया, नहीं, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, मैंने करना है। और फिर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के बिना तो खैर कुछ होता ही नहीं। तो जब आपके पास एक गुरु, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क का राइट कॉम्बिनेशन हो जाता है, सक्सेस आपके कदम चूमते हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो गुरु कहां से ढूंढे? गुरु तो आपके सामने खड़े हैं। तो वी हैव लॉन्च्ड द एनएसईपी कोर्स फॉर 2024-25 एस्पिरेंट्स। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 मॉड्यूल्स ऑफ 2 मंथ्स ईच। में मॉड्यूल्स के नाम दिखाऊंगा। क्लासेस थर्सडे फ्राइडे 6:15 से 7:30 होती है। बट दैट डजंट मीन क्लासेस आर 2 days a week, क्योंकि बाकी दिन हमारा टेलीग्राम सपोर्ट चलता रहता है। वी हैव टेलीग्राम ग्रुप, नॉट ए चैनल, ग्रुप, जहां पर आप पार्टिसिपेट करोगे, फेलो क्लासमेट से बात करोगे, मेरे से बात करोगे, मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप उसके सॉल्यूशंस पुट करोगे, अपनी डाउट्स पूछोगे, आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। तो एक स्नीक पीक दे देता हूं टेलीग्राम चैनल में। तो दिस इज वन ऑफ द टेलीग्राम चैनल। सी व्हाट हैपेंस हियर इज स्टूडेंट विल आस्क अ डाउट, और मेरी कोई क्लास चल रही है तो मैं 1.5-2 घंटे बाद कभी देखता हूँ, उसमें डाउट्स क्लियर कर दूं। पता लगा लोगों ने आपस में, स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के डाउट क्लियर कर दिए, कम्युनिटी फीलिंग बनती है, भाईचारा बनता है। एंड दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क हियर। और इससे क्या होता है कि जो हेल्प मांग रहा है उसकी तो हेल्प हो गई, लेकिन जिसने हेल्प करी उसकी भी हेल्प हुई, क्योंकि उसने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अरे अगर आप किसी की डाउट क्लियर कर रहे हो, आपकी कितनी क्लैरिटी हो जाएगी। दिस इज द काइंड ऑफ एंगेजमेंट दैट इज हैपनिंग ओवर देयर। Now looking at the class, this is how the classes work. So this is where I teach, and that's my camera, and then this is where the students will be interacting with me, with each other. So वो लिखा ना उसने, answers लिखे। Then there will be quiz questions in the class where these are the options, and then student will pick A B C D. This is the timer, 15 सेकंड दिए थे इस क्वेश्चन में मैंने। और जब आंसर आता है तो जिसने जल्दी आंसर दिया, ठीक आंसर दिया, उनका लीडर बोर्ड बनता है यहाँ पे। Look at the confidence that you will get here. And when we get a very good response, where we actually celebrate with dhols, drums, star showers. आप देखिए पढ़ाई में इतना मजा आएगा, we will not be making it boring, we actually make it very interesting. बहुत बढ़िया, मजे मजे में सीख जाएंगे। तो पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ाऊंगा। सो माय नेम इज भवदीप सिंह, एंड देन आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एकलव्य बैच इज आवर बैच, जहां से टॉपर्स हमारे निकलते हैं। तो I don't want to talk a lot about myself. You will see for yourself in the classes. ठीक? Now, as I said, 5 modules में divide कर दिया है। This module has already been launched. इसकी क्लासेस जो मैंने अभी दिखाई थी उसी की थी, पर अभी 1-2 क्लासेस ही हुई हैं, and we will give you cover up classes if you want to enroll here. But एक बात मैं आपको बता दूं as a warning, क्योंकि हम इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जैसे मैं डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो
दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव स्मॉल साइज क्लासरूम्स। अगर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इतना लिमिटेड टाइम होगा, तो दैट्स व्हाई वी मेक द क्लासरूम्स वेरी स्मॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल, तो कुछ सीट्स यहाँ बची हैं। द सूनर यू ऐड द मोर द चांसेस दैट यू विल गेट इनटू। सो दीज आर द 5 मॉड्यूल्स, यू कैन आइदर बाय इंडिविजुअली, बट आई वुड से पूरा बाय करोगे तो बेटर है। तो बताओ भाई कैसा जोश है अभी, फोड़ना है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो कोर्स में एनरोल कैसे करना है? पर उससे पहले ये थोड़ा सा, मैं छोड़िए क्या बोलना है यार, पता ही आपको, ये सारा 2023 के हमारे जितने एग्जाम थे सब में फोड़ा है वेदांतु स्टूडेंट्स हैं। सो नाउ हाउ डू यू एनरोल? बेसिकली यू गो टू vedantu.com, गो टू कोर्सेज एंड ओलंपियाड कोर्सेज आफ्टर दैट। सो लेट्स सी, आप यहाँ जाओगे, कोर्सेज में जाओगे, है ना, ये कोर्स हाँ यहाँ पर, तो कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे ओलंपियाड में, ओलंपियाड के बाद एनएसईपी मॉड्यूल 1 मैकेनिक्स पार्ट 1, ये दिख रहा है। अगेन कोर्सेज में गए, फिर ये पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा, इसमें ओलंपियाड में जब होवर करोगे, यहाँ पर एनएसईपी मॉड्यूल 1 मैकेनिक्स पार्ट 1 में जाओगे, इसका लिंक हम लोग डाल देते हैं नीचे, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। So this is where we end the conversation today. So again, I'll repeat what I always repeat before I end my classes. Believe in yourself and then you achieve your dreams. अपने ऊपर विश्वास करिए और बोलिए कि मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, आपका हर ड्रीम फुलफिल होगा। पर जहां आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, जहां आपको थोड़ा सा भी शक हो गया, डाउट हो गया अपने ऊपर, फिर मैं कोई गारंटी नहीं लेता। तो चलिए फिर जल्दी मिलेंगे स्टूडेंट्स। इट वाज रियली फन इंटरैक्टिंग विद यू टुडे। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड लक विद यू।